بہترین شعر و شاعری بھی سنی، یہ سب تشریف رکھتے ہیں۔ جب سے دربار غوث الورا مل گیا، جنتی راستے کا پتہ مل گیا، حق ہے اور غوث اعظم ملے تو مصطفیٰ مل گئے، مصطفیٰ مل گئے تو خدا مل گیا۔ کشتی دین حق کی ڈوب سکتی نہیں، اوپنلی چیلنج ہے جو مذہب اسلام کو مٹانے کی ناپاک سازشیں رچ رہے ہیں، جو شب و روز اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، ان کو اوپنلی چیلنج ہے۔ کشتی دین حق کی ڈوب سکتی نہیں، غوث اعظم سے جب ناخدا مل گیا، اور شہ بغداد کی اللہ رے کیا شان عالی ہے کہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی نکالی ہے۔ بول دو بھی پیچھے والوں، تم بھی بول دو۔ شہ بغداد کی اللہ رے کیا شان عالی ہے کہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی نکالی ہے۔ ہمارے غوث نے بچپن میں وہ جوہر دکھائے ہیں، آپ بھی کھیلے ہم بھی کھیلے، دنیا کھیلتی ہے، جزاک اللہ خیر۔ سب کے کھیل الگ ہے، آپ کا کھیل کرکٹ، فٹ بال، والی بال، بگی باغ جانتے ہیں؟ جی جی ہوتا نہیں ہوتا ہے بگی باغ؟ ہوتا 40 50 سال کہ اس کی بگی باندھ دی، اس کا بگا باندھ دیا، پورا دن بگی باندھ رہے ہیں، اور جس دن اسرائیل علیہ السلام آ گئے ایسی بگی باندھیں گے کوئی بھی نہیں کھول پائے، نہ نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ، نہ اذان کا پتہ، چوراہوں پہ بیٹھ کے ہو رہی کہ اس نے بگی باندھ دی، اس نے بگا باندھ دیا، کہ کھلی نہیں، وہ بڑا اچھی باندھتا، اس کا کوئی نہیں کھولتا ہے، اس کا اسرائیل علیہ السلام کھول کے پھر باندھیں گے، پھر ان کا کوئی نہیں کھولے گا، بے شک حق ہے ان کا بندہ ہوا کوئی نہیں کھولتا، وہ لاسٹ ہے، کرپشن بھی نہیں ہے، پکڑ جاؤ نوٹ دو نکل جاؤ، اور ان کی بارگاہ میں کوئی کرپشن نہیں، کوئی رشوت نہیں، وہاں رشوت نہیں چلتی ہے، وہاں نہ ستہ چلتی ہے، نہ بدائی چلتی ہے، وہاں پر کچھ نہیں چلتا ہے، وہاں تو جو اللہ کا حکم ہے وہی چلتا ہے، تو کسی کا کھیل کچھ، کسی کا کھیل کچھ، کسی کا کھیل کچھ۔ وارے بغداد کے غوث اعظم جب آپ کھیل کھیلتے تھے نا، کوئی چھوٹا موٹا نہیں، موت اور زندگی کا کھیل کھیلتے تھے، جسے کہا مر جا تو مر ہی گیا، اور مرے کو کہہ دیا زندہ ہو جا تو زندہ ہی ہو گیا، ایسا کھیل۔ شہ بغداد کی اللہ رے کیا شان عالی ہے کہ 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی نکالی ہے، ہمارے غوث نے بچپن میں وہ جوہر دکھائے ہیں، جس قالب میں چاہا روح ڈالی ہے نکالی ہے، جس قالب میں چاہا روح ڈالی ہے نکالی ہے۔ اب میں شروع کر رہا ہوں، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ آن دا ٹاپک گفتگو کی جائے، میں نے جس آیت کو موضوع سخن بنایا اسی کے اکارڈنگ مجھے کچھ آپ سے بات چیت کرنی ہے، انشاءاللہ بہت جلدی اپنی بات ختم کروں گا۔ رب ارشاد فرماتا ذرا اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ وہ حشر میں رنجیدہ ہوں گے۔ آپ کہہ سکتے ہو حضرت آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ کے ولی ڈرتے نہیں ہیں؟ ہاں بھئی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ کے ولی گڑ گڑاتے نہیں۔ آپ کہو گے ہم نے تو تاریخوں میں پڑھا ہے، دیکھا بھی ہے، اللہ کے ولی تو بے شمار بے حساب روتے ہیں، کانپتے ہیں، اللہ وہ تو کوئی کام کرتے ہوئے لرزتے ہیں، اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے ولی ڈرتے نہیں۔ ہاں نہیں ڈرتے، وہ لرزتے ضرور ہیں، وہ روتے ضرور ہیں، لیکن کسی دنیا دار کے سامنے نہیں، صرف پروردگار صاحب کے سامنے، صرف پروردگار سے وہ ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سطح کسی حکومت سے نہیں ڈرتے، اللہ والوں کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، نہیں، بالکل فری رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ خشیت الہی، خوف خدا، شرم نبی، یہ تمام صفات ان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اب سب ولی کہیں گے کسے؟ ولی کی پہچان کیا؟ میں کہوں میں اللہ کا ولی ہوں، آپ اللہ کے ولی ہیں، ولی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ولی کی تعریف کیا ہے؟ ولی کی پریبھاشا کیا ہے؟ ولی کہتے کسے ہیں؟ لگر لگر ڈگر ڈگر 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے کے بعد، بڑے بڑے بال، لال پیلے جبے قبے، وارث پاک کا نام لے کے، مدار پاک کا نام لے کے،
कहे अल्लाह का वली हूं, अल्लाह का वली हूं, अल्लाह का वली हूं। और मुरीद भी ऐसा ऐसा हाई फाई। ये आज के दौर में मुरीद विलायतें बांट रहे हैं, विलायतें। ये जिसे चाहे वली बना दे, कौम वली बना रही है। हाँ, ये मुरीद जो होते हैं जिसे चाहे वली बना दे, करामतें ऐसी ऐसी लाते हैं। बोले हजरत हमारे पीर साहब ने मरे हुए कुत्ते में लात मार दी, वो जिंदा हो गया। मैं कहा यार बता, करामत भी पेश कर रहा तो मरे हुए कुत्ते की। जब हमारे पीर साहब की गाड़ी में तेल खत्म हो गया, फूंक मारी तो 100 किलोमीटर गाड़ी चल गई। ऐसी ऐसी बिल्कुल लेटेस्ट करामत लेकर आए, बिल्कुल न्यू। वली कहते किसे? क्या लाल पीले चुप्पे पुप्पे पहनने के बाद कोई वली होता है? बड़े बड़े बाल रख लिए, अपने आप को पीर मुगा समझ रहा है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम याद है, नमाज के शराइत वाजिबात याद नहीं, मदरसा में एक दिन नहीं गया, कहता है फिर टक्कर लेता इमामों से और मौलवियों से। अल्लाह के वली, अल्लाह के वली, अल्लाह के वली कहेंगे किसे? अल्लाह का वली होता कौन है? मियार क्या है? वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता, याद रखना। करामत तो एक उसकी एक आम सी सिफत है वली में। सिर्फ वली करामत से नहीं पहचाना जाता है। वली कहेंगे किसे? कहा हजरत हमारे पीर बहुत पहुंचे हुए हैं। मैंने कहा हाँ, कितने पहुंचे हुए हैं भाई? हम भी इसी बस्ती में हैं। तेरे पीर को 3 दिन हो गए, ना जोहर में है, ना असर में है, ना मगरिब में है, ना ईशा में है, ना फजर में है। कितना पहुंचा हुआ है? हजरत मदीने में पढ़ते हैं, मदीने में। मैं कहा ठूस बरेली में रहा है, नमाज मदीना में पढ़े, जिंदाबाद जिंदाबाद, कहाँ की मंदिर पढ़ा रहा है? पहुंचे हुए, पहुंचे हुए, पहुंचे हुए। और मुसीबत ये है आज के दौर में इंसान मुरीद जो होता है ना, कब बोले यार काम नहीं चल रहा है, अब मुरीद हो जाओ। या घर से बीमारी नहीं निकल रही है तो मुरीद हो जाओ। या बिल्डिंग नहीं बन रही तो मुरीद हो जाओ। इसलिए मुरीद होती है। पीरी मुरीदी का सिस्टम ही खराब कर दिया। जो मीयार था उसे वो गलत ही चुन लिया, सही मीयार को हमने खत्म कर दिया। मुरीद किस लिए हुआ जाता? इमारत बनाने के लिए, कारोबार में तरक्की कराने के लिए। मुरीद होने का मतलब क्या है? अब मुरीदी चक्कर में यार पीर साहब को ऐसा ताबीज दे दें एकदम इमारत बन जाए ऊंची सी, पूरी बस्ती में, हरपुर में सबसे ऊंची इमारत हो। और पीर तुमसे आगे है। पीर ये सोच रहा है कोई मोटी मुर्गी फंस जाए, मोटा लिफाफा मिल जाए और मेरी इमारत बन जाए। वो तुमसे आगे है। दोनों का मत में नजर माल। लेकिन अल्लाह अल्लाह कुरान क्या कहता है वो सुनिए। वली किसे कहेंगे? अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली कंडीशन शर्त ये है कि मोमिन हो, ईमान वाला हो। बेशक, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सबसे पहली शर्त ईमान वाला हो, मोमिन हो। गैर मोमिन अल्लाह का वली नहीं हो वो सकता। गाड़ी है जो रात दिन देखते हो, कोई नई चीज नहीं है। यहाँ आपके रोड पे कोई ट्रेन होके नहीं जाएगी, या हेलीकॉप्टर यहाँ से नहीं जाएगा, वो हवा में उड़ता है। वो 4 पहिया की कार हो सकती है, कार में कोई सी भी हो सकती है। आप मुझे देखिए, वो रास्ता है, चलता रहेगा। आप जितनी जल्दी काम करेंगे इतनी जल्दी जलसा खत्म होगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली शर्त कंडीशन ये है कि ईमान वाला हो। गैर मोमिन, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम अल्लाह का वली नहीं हो सकता। चाहे आसमान में उड़ के दिखाए, कितने भी प्रोपेगेंडे कर ले, वो उसकी नजरबंदी होगी, उसका जादू होगा, वो उसका धोखा होगा, वो उसका फरेब होगा, वो उसकी मक्कारी होगी। अल्लाह का वली, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। कुरान कह रहा अल्लज़ीना आमनू, सबसे पहली शर्त ये है कि वो ईमान वाला हो। अब हर ईमान वाला भी अल्लाह का वली नहीं। आप कहो हजरत हम भी ईमान वाले, हम गए, हम भी ईमान वाले, साफ बस्ती बस्ती में सीना चौड़ा करके गए, हम ईमान वाले, हम अल्लाह के वली, हम अल्लाह के वली, डगर डगर अल्लाह के वली, गलियों गलियों में अल्लाह के वली, बस्ती बस्ती में अल्लाह के वली। हर ईमान वाला भी अल्लाह का वली नहीं। दूसरी शर्त, दूसरी कंडीशन सुन लीजिए। कुरान कहता है वकानू यत्तकून, दूसरी शर्त यह है कि वो अल्लाह से डरने वाला हो। हजरत अल्लाह से तो हम भी डरते हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छा डरते हो भाई, चेहरे पे दाढ़ी है नहीं, अल्लाह से डरते हैं। फजर, जोर, असर, मगरिब, इशा, 5 टाइम की गालिब है, अल्लाह से डरते हैं। गरीबों का खाती हैं, अल्लाह से डरते हैं। यतीमों का लपेटते हैं, अल्लाह से डरते हैं। माँ बाप को दिन रात गाली देते हैं, अल्लाह से डरते हैं। पड़ोसियों को सताती हैं, अल्लाह से डरते हैं।
इमामों की टांगें खींचती हैं, अल्लाह से डरते हैं। उलमा की शान में तौहीन करती हैं, अल्लाह से डरते हैं। छोटों से मोहब्बत नहीं करती, अल्लाह से डरते हैं। बड़ों की ताज़ीम नहीं करती, अल्लाह से डरती हैं। अल्लाह से डरती हैं, अल्लाह से डरती हैं, अल्लाह से डरती हैं। ना फर्ज पे अमल है, ना वाजिब पे अमल है, ना सुन्नत पे अमल है, ना हराम छूट रहा है, ना हलाल को फॉलो किया जा रहा है। अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। अब आओ कुरान ही से पूछते हैं, कुरान तूने मसला क्लियर कर दिया है कि वली होने के लिए दो शर्त, पहली शर्त ये कि ईमान वाला हो, दूसरी कंडीशन ये है कि अल्लाह से डरने वाला हो। अब तू बता अल्लाह से डरता कौन है? तो कुरान की दूसरी आयत कहती है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से अगर कोई डरता है तो वो इन तमाम इंसानों की जमात में उलमा की जमात में जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। अब आप कहोगे हजरत हमने तो बहुत सारे आलिम, बहुत सारे हाफिज, बहुत सारे कारी ऐसे देखे, उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, झूठ बोलता हुआ हमने देखा है, नमाज़ें छोड़ता हुआ हमने देखा है, अल्लाह अल्लाह बहुत सारे हमने नाजायज काम करते हुए देखा है। आप कैसे कह रहे हो उलमा अल्लाह से डरते हैं? तो सुनो, हर हाफिज भी अल्लाह का वली नहीं, हर कारी भी अल्लाह का वली नहीं, हर आलिम भी अल्लाह का वली नहीं, हर फाजिल भी अल्लाह का वली नहीं, हर मुफ्ती भी अल्लाह का वली नहीं। अल्लाह अल्लाह ये तमाम उलमा भी अल्लाह के वली नहीं। अब अल्लाह का वली कौन होगा? मैं नजरिया फिट कर रहा हूँ, मैं नतीजा निकाल रहा हूँ। नतीजा ये है अल्लाह का वली जो होगा, जो मोमिन हो, आलिम भी हो, अपने इल्म पे अमल करने वाला भी हो, अल्लाह से डरने वाला भी हो, हलाल को हलाल, हराम को हराम, उस पर अमल करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह का वली होगा, हर एक अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अब जो सूफिया ने तारीफ की है ना वली की, उसको सुन लीजिए अगर सुनना चाह रहे हैं। सूफी कहते हैं जिसका दिल दुनिया वमा फीहा से लाताल्लुक होकर इश्क़ रसूल का मदीना बन जाए, वो अल्लाह का वली है। अच्छा, एक बिल्कुल सरल सी आसान सी बात बता दूं, अल्लाह के वली की पहचान बता दूं, जिसका चेहरा देख के खुदा याद आ जाए, अल्लाह का वली है। यार ये चीज तो आसान है ना। चेहरे पे बजे हैं बारा, अल्लाह का वली पीर है बुगा, पीर ऐसा मत चुनो, नमाज छोड़ने पे मजबूर हो जाओ, सुल्फा पीने पे मजबूर हो जाओ, गैर महरम से मिलने मिलाने खलत मलत पर मजबूर हो जाओ। नहीं, अल्लाह का वली अगर देखना है, पीर चुनना है तो ऐसा चुनो, चेहरा देखो, नमाजी नहीं है तो नमाजी बन जा, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है तो चेहरे पे दाढ़ी रख ले। पीर चुनना है तो ऐसा चुनो, इमारत बनाने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, कारोबार में तरक्की के लिए नहीं, इसलिए मुरीद हो रहे हैं, आपके दामन से मुंसलिक होंगे, गुनाहों से बच के सही रास्ते पे आ जाएंगे, जहन्नम से बच के जन्नती रास्ते पे आ जाएंगे। इसलिए पीर चुना जाता है। ये नहीं है कि आप अपना हाथ किसी के भी हाथ में दे दो, इस हाथ की कीमत बहुत ज्यादा है। इस हाथ की कीमत, ये वो कीमती हाथ है जो करबला में इमाम हुसैन ने बचाया था। बोलो सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह मैं शुरू होने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर मैं इंशाल्लाह, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको नींद नहीं आएगी। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इस हाथ की कीमत बहुत, ऐसे ऐसे हैं मार्केट में, अल्लाह खैर करे, ऐसे ऐसे हैं कि बस बता नहीं सकते। नमाजों से दूर, शरीयत से दूर, तरीक़त अलग है, शरीयत अलग है, तरीक़त अलग है, शरीयत अलग है। नमाज के वाजिबात सुन लो ना तो हुचकियाँ पे हुचकियाँ आ जाएंगी, कई लीटर पानी पी जाएगा, कई लीटर। और है बहुत बड़ा पीरे मुल्ला, अगर कोई इमाम आगे बैठ जाए तो एकदम झड़क देगा, इमाम साहब मेरी ताज़ीम के लिए नहीं उठे, इमाम साहब मेरे लिए उठे नहीं, इमाम साहब ने मुझे सलाम नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मिजाज देखो, आलिशाना मिजाज है। धड़ियां भी लेके जाएंगे, पीराए लिफाफे दोगे, मुसाफा करोगे। भाई अगर कोई बादशाह पीर है, अच्छी बात है, मोहब्बत करो, भाई से अजर है, भाई से सवाब है, लेकिन उनसे पहले तुम्हारे इमामों का हक है। बोल दो यार, अगर अच्छा लग रहा तो बोलिए। तरीक़त अलग, शरीयत अलग। क्या शरीयत और तरीक़त अलग है? क्या मौलवी अल्लाह
سب سے بڑی بات بولے یہ بتا دو کہ کون سا مولوی اللہ کا ولی ہوا. اب میں نے کہا کمقلی یہ بتا دے کہ کون سا اللہ کا ولی مولوی نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مت پوچھ کہ کون مولوی اللہ کا ولی ہوا ہے, یہ بتا کہ کون اللہ کا ولی مولوی مولانا نہیں ہے. اب میں تمہیں ایسے پیر کی بات بتاؤں جس پیر کے نام پہ تم نے اس محفل کو سجایا. میں کہتا ہوں سن, تو کہتا شریعت الگ طریقت الگ, تو کہتا فقیری الگ مولوی لائن الگ. تم مدرسہ مسجد اور خانقاہ میں تبلیغ کرتا ہے. سن, جو تیرا بھی پیر ہے, تیرے باپ کا پیر, تیرے دادا کا پیر, جو خواجہ کا پیر, اعلیٰ حضرت کا پیر, شاہ میاں کا پیر, پیرانے پیر, بغداد کے غوث اعظم. ہم نے پوچھا تم بتاؤ کیا شریعت الگ ہے, کیا طریقت الگ ہے؟ اللہ اللہ بغداد کا پیر کہتا ہے درست العلم حتی صرف خطبہ ونلت السعد من مولا الموالی. سنو سنو, میں علم دین حاصل کرتا رہا, اللہ نے مجھے کتب بنا دی. جو پیروں کا پیر ہے, صرف لفافے لینے والے نہیں. پیروں کا پیر پڑھا بھی, اور ایسا پڑھا 15-12 کا تو حافظ قرآن ماں کے پیٹ میں بے شک سبحان اللہ. بول دو سبحان اللہ. اور شان یہ ماں کے شکم میں ہو, ماں کو چھینک آئے, ماں الحمدللہ کہے خود تو ماں کے پیٹ سے غوث اعظم یرحمک اللہ اللہ کہے. بے شک سبحان اللہ. وہ پیر کہتے ہیں, اور صرف اپنی بستی میں ہی نہیں پڑھے, اللہ اللہ درس و تدریس کے لیے, عالمیت پڑھنے کے لیے, افتاء پڑھنے کے لیے اپنے شہر کو بھی چھوڑا, اپنے وطن کو بھی چھوڑا. باپ کا سایہ ہے نہیں, ماں کی محبت, ماں کی ممتا کو بھی الوداع کہا. علم دین سیکھنا ہے اور سیکھ کے پوری دنیا میں چراغ کو روشن کرنا ہے. سنا نہیں ہے تم نے؟ اور جاتے ہی جاتے جھلکیاں شروع ہو گئی. ابھی تو علم دین پورا حاصل کیا بھی نہیں تھا, راستے میں تھے چور مل گئے تھے, سنا ہے نا آپ نے؟ سب کا جھاڑا لیا, بولے اس کے پاس کیا ہوگا, کا کچھ ہے؟ ہاں ہے. تو دیکھو 40 اشرفیاں ہیں, بہت بڑی قیمت ہوتی تھی. کھالا, ڈھونڈا, چھین چھانا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, مل نہیں رہی ہے. کہاں کہاں مذاق کرتا ہے؟ کا مذاق نہیں کرتا ہوں, کیونکہ اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے. اللہ والوں کو جھوٹ سے نفرت ہے. کیسے غوث اعظم کے چاہنے والے ہو, دن میں اگر 100 مرتبہ بولو تو 98 مرتبہ جھوٹ, 2 مرتبہ دھوکے سے سچ, دھوکے سے, وہ بھی جان بوجھ کے نہیں, دھوکے سے سچ. پکے پیرانے پیر کے چاہنے والے 11ویں والے ہیں, 11ویں والے ہیں. اللہ اکبر کبیر. غوث پاک نے قسمتیں بدل دی. غوث پاک صرف خانقاہ میں بیٹھ کر لفافے لینے والے پیر کا نام نہیں ہے. درسگاہ میں بیٹھنے کے بعد 13 سبجیکٹ پڑھانے والے کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے. اور پڑھاتے نہیں تھے, پلاتے تھے. پلا میں پڑھاؤں, میرا استاد پڑھائے, آج کے مفتی پڑھائے. کسی کا استاد کسی کو حافظ بنائے, کسی کا استاد کسی کو قاری بنائے, کسی کا استاد کسی کو مولوی عالم بنائے, فاضل بنائے, مفتی بنائے. لیکن مارے غوث اعظم, جب غوث اعظم پڑھاتے, کسی پہ نظر ڈالی تو ولی بنا دیا, کسی پہ نظر ڈالی تو فرد بنا دیا, کسی پہ نظر ڈالی تو قطب بنا دیا, کسی پہ نظر ڈالی تو زمانے کو غوث بنا دیا. ارے پلاتے تھے, غوث اعظم ہے. اور یہ طریقت اور شریعت والا کرنے میں لگا پڑا. ایسے ایسے ہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ بالکل نکما, جس سے کچھ نہیں ہو سکتا, جس سے کچھ نہیں ہو سکتا. اور وہ ایک پیڑ کے نیچے بس لکھنے بیٹھ جائے, تعبیر چاہے ریڈی میڈ دینے لگے, پھو کرنے لگے بس, اور محلے کی ایک عورت چلی جائے,
आज तक का एडवर्टाइज इतना तेज नहीं है जितना तेज इन औरतों का एडवर्टाइज है। बेशक हक है, हक है। बस एक चली जाए, अरे भैया बड़े पूंछों में फर फर बता रहे हैं, फर फर। और बिल्कुल निकम्मा, बेकार, कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल कमजोर है, बीमारियों में घिरा हुआ है। और ये ऐसे फेमस करती है, बड़े बड़े अच्छे घरों की औरतें हैं, नहीं यार नमाज नहीं पढ़ता, उससे कुछ हो नहीं सकता, जुआरी है, और उसे बस इतना बड़ा पोंछा वो बना दिया। अल्लाह अल्लाह। फिर बताते कैसे हैं? ऐसे प्रोपेगंडे हैं, अल्लाह तेरी मना, अल्लाह खैर फरमाए। हाँ कि तुम्हारे कांधे भारी रहते हैं, कमर में दर्द रहता है, टांगों में दर्द रहता है। यार ये तो नॉर्मल सी चीज है, कौन सी ऐसी औरत है ये परेशानी है ना, इल्ला माशाअल्लाह। कमाते बहुत है, बरकत नहीं होती है, अल्लाह अकबर कबीर। और सबसे बड़ी बात जो बताऊं आज के दौर में जो आ रही है, सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हारे शौहर पहले की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं करते। ये टक्कर की बात है, ये हमारे पास भी बहुत गुनाते हैं। मैंने कहा यार 40 साल का 50 साल का हो गया, वो मजदूरी करते करते उसका खून का पानी बन गया, तुझे अभी भी मोहब्बत की पड़ी है। ये हर घर करो ना। और जैसे ये कहा कि तुम्हारे शौहर तो पहले की तरह तुमसे, जी हुजूर ये तो बिल्कुल बात सच्ची है, ये तो सच्ची सी चीज का तो होना है। वैसे मोहब्बत ही बहुत करें, खाने पीने का ख्याल भी है, मगर यहाँ कमी आ गई, पहले की तरह नहीं समझते। अल्लाह, उसके हालात खराब, कमाते कमाते, मजदूरी करते करते, फैक्ट्री में 24 घंटे काम करता, 18 घंटे की ड्यूटी करता, और अपनी तनख्वाह से वो तेरा ब्यूटी पार्लर का खर्चा ही पूरा नहीं कर पा रहा। अगर घर में भैया की शादी हो जाए तो 50,000 से नीचे नहीं बैठ रही, 20,000 का जोड़ा है, 10,000 चेहरे पे लगेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा है। कितने फेशियल करवा लो, कितने बालों में झटके मार लो, कितनी डाई करवा लो, 40 साल के बाद में तो आंखों के नीचे गड्ढे पड़ रही हैं। हाँ पड़ रही हैं। 40 साल के हो गए, बिल्कुल सफेदा हो चुके हैं, सफेदा, और हर 8वें दिन काली डाई ठुक रही है। पूरी बस्ती को मालूम है कि सफेद हो चुका, और हर 8वें दिन काली डाई लगा। अल्लाह, मरना नहीं है, अल्लाह को मुंह दिखाना नहीं है। बहुत बड़े गौसे पाक के चाहने वाले 11वीं आ रही है, 10 बनाएंगे, 20 बनाएंगे, 50 बनाएंगे। अरे बनाओ, अल्लाह ने दिया है तो अच्छी बात है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन साहब प्रधान जी भी आएंगे, जमींदार भी आएंगे, फूला साहब भी आएंगे, प्रोफेसर भी आएंगे, ये भी आएंगे, वो भी आएंगे, जमाने का अमीर ढुल ढुल के आएगा, लेकिन बस्ती में, पड़ोस में, करीब में उनकी दावत नहीं होगी। तू कैसा ग्यारहवीं करने वाला है यार, तू कैसा गौसे पाक का चाहने वाला है? अरे गौसे पाक की 11वीं करने वाले सुन, गौसे पाक जब उनको भूख तड़पाती है, जब भूख की शिद्दत हरारत उनको परेशान करती है, और जब दरिया के पास घूमने जाती है कि कोई गिरी पड़ी चीज मिल जाए, मिल जाने मिल ला, उसे उठाकर खाऊंगा, भूख की शिद्दत खत्म हो जाएगी, हरारत खत्म हो जाएगी। लेकिन जब सोइए फकीरों की कतार लगी हुई देखी, वापस आ गए, अपने हाथ को कहते समीर पुकारता है, अब्दुल कादिर जिलानी तू कोई चीज खाएगा, ये तेरे सामने सोइयो फकीर खड़े हैं, अगर इनके हलक में नहीं जाएगी तो ये बता तेरे पेट में वो शे कैसे जा सकती है?